My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another session on algebra. And before starting the session, make sure to subscribe to the channel as well as like this session if you're liking content and join the Telegram channel Mathological. So, first question, the value of 6 plus log of this value on the base 3 by 2. So, what will be the value? Now, pause the video and try to solve it. So, the value that we have to find log of, that is 1 by 3 root 2 and then square root of 4 minus 1 upon 3 root 2 and so on. So, first of all, सबसे पहले मैं इसी पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा. दिस पार्ट, दिस स्क्वायर रूट, we need to find out value of this. Okay, so let us assume that this is equal to some value x. X is equal to square root of 4 minus 1 upon 3 root 2, then again a square root of 4 minus 1 upon 3 root 2 and so on. Now since this square root is infinitely many times, isn't it? So this goes on. तो अगर इन्फाइनेटली मेनी टाइम्स है, तो अगर इन्फाइनाइट में से हम एक स्क्वायर रूट रिमूव भी कर देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? लेट अस से कि तुम्हारे पास इन्फाइनेटली मेनी कॉइन्स हैं, यू हैव इन्फाइनेटली मेनी कॉइन्स, एंड इफ आई एम रिमूविंग वन कॉइन, so even after the removal of one coin, number of coins left is still infinity, isn't it? So अगर two coins remove किए मैंने, still you will have infinitely many coins. So infinite minus 1 is also infinite, infinite minus 2, infinite minus 10, that is also infinite. Okay, so can we say that the terms inside this square root, the second वाला square root, that is also equal to x? भाई ये भी तो x ही होगा. So we can write this as that x is equal to square root of 4 minus 1 by 3 root 2 and into x. Now square on both sides. On squaring, left hand side becomes x square and right hand side में से square root remove हो जाएगा, तो x square is equal to 4 minus x upon 3 root 2. Now multiply by 3 root 2. So 3 root 2 times x square becomes 4 into 3 root 2 यानी 12 root 2 minus x. So this becomes a quadratic equation 3 root 2 x square plus x minus 12 root 2 and this is equal to 0. Now we can find out roots of this equation. 3 root 2 x square plus x minus 12 root 2 and that is equal to 0. Okay, so product of the roots क्या होगा? अगर हम सॉल्व करने के मेथड से देखेंगे तो मल्टीप्लाई दीज टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म, तो 3 root 2 into 12 root 2, this is equal to 12 into 3 36 into root 2 into root 2 72. So minus 72 is the product. Okay, and यहाँ पे हमारा सम कितना आ रहा है ऐसा, ठीक है, minus 72 है and this the sum of those two terms will be plus 1. 72 is 9 into 8, so this can be written as minus 8 into 9. Minus 8 and 9 sum is equal to minus 72. So 9 and minus 8 and divide by 3 root 2. Divide by 3 root 2. क्लियर है? ओके, अच्छा, क्योंकि एग्जैक्टली हमें रूट्स निकालने तो सम आएगा -1. -1 आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा लोचा कर दिया, तो -1 आएगा तो हमें 8 इंटू -9 करना पड़ेगा. तो फर्स्ट रूट विल बी 9 by 3 root 2 यानी कि -3 upon root 2 and second root will be 8 by 3 root 2, so that will be 4 root 2 upon 3. But since x is this value, तो x must be greater than 0, पॉजिटिव होगा. स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, isn't it so? तो that will always be positive. स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग that will always be positive, तो x must be positive. तो x cannot be -3 by root 2 and hence this must be equal to 4 root 2 by 3. x की वैल्यू मिल गया, x is equal to 4 root 2 upon 3. अदरवाइज सिंपली सॉल्व कर सकते थे वैसे भी कि 3 root 2 x square plus x minus 12 root 2 प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, that is 72. So we can break x into 3 root 2 x square plus 9x minus 8x minus 12 root 2 is equal to 0. और फिर अकॉर्डिंगली फिर वहाँ से भी हमें ये वैल्यू मिली जाती. x आ गया हमारा 4 root 2 upon 3. Now replace this value of x here in this equation, in the original equation. ओरिजिनल इक्वेशन हमारे बन जाती है x is 4 root 2 by 3
Place this here. So 6 plus log of 1 upon 3 root 2 into 4 root 2 divided by 3. Root 2 से root 2 cancel out हो गया. So this becomes 6 plus log of 4 by 9 on the base 3 by 2. And 2 by 3 whole square, this is equal to 4 by 9. जबकि बेस हमारा है 3 by 2. तो we can say 2 by 3 to the power minus 2. सॉरी 2 by 3 to the power 2 है, तो 3 by 2 to the power minus 2 हो जाएगा. That is equal to 4 by 9. Hence यहाँ से रिजल्ट हमें मिलेगा 6 minus 2 and hence equal to 4. Answer will be equal to 4. Clear है? Okay. Next question करते हैं. Next one. A polynomial px is defined as follows. When px is equal to 2 plus x squared to the power n, and that is equal to a0 plus a1x plus a2x square till a2n times x to the power 2n. And it is given that a1 plus a3 plus a5 till a2n minus 1, that is equal to 496. So हमें find out करना है remainder obtained when the polynomial is divided by x plus 2. तो sum of coefficients somehow हमें निकालना पड़ेगा, और गिवन हमें क्या है a1 plus a3 यानी कि अल्टरनेट कोफिशिएंट्स का हमें सम दिया है फ्रॉम a1 to a2n minus 1. दैट इज गिवन. ओके, सो किसी भी पॉलिनोमियल में, कोई पॉलिनोमियल किसी भी फॉर्मेट में हो, तो इफ px इज इक्वल टू लेट अस से a plus bx plus cx स्क्वायर एंड वॉट एवर टू द पावर n, और हमें चाहिए सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स. तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, बिकॉज x 1 पुट करते ही x तो गायब हो गया, तो ओनली कोफिशिएंट्स मिल भी जाए. तो p1 will be equal to a plus b plus c and so on to the power n, and this will be our sum of all coefficients. Okay, ठीक है, clear है. Just in case we need to find out if px is divided by x minus a, so what will be the remainder? So to find out the remainder, we can find out pa, यानी कि we can put x equal to a in the equation and pa will be our remainder when px is divided by x minus a. तो ये बहुत दो बातें समझ में आनी चाहिए, इन्हीं का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो px तो हमें गिवन है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स यहां से मिल जाएगा इफ यू पुट x इक्वल टू 1. तो पुट x इक्वल टू 1, p1 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर विच इज ऑल्सो 1 टू द पावर n, यानी कि 4 टू द पावर n, एंड 4 टू द पावर n विल बी इक्वल टू a0 प्लस, क्योंकि x तो 1 आ गया, तो a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन टिल a2n. तो दिस इज 4 टू द पावर n, दैट इज गिवन. फिर हमें a1 से लेके a2n माइनस 1 की वैल्यू गिवन है, तो कैसे हम निकालें कि समहाउ a1 से लेके a2n माइनस 1 तक के टर्म्स में हम पहुंच जाए. So if we put, let us say p x equal to minus 1 पुट करें in this equation in the polynomial, तो p minus 1 क्या होगा, बिकॉज माइनस 1 करते ही हमारे अल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे. तो p minus 1 दिस विल बी इक्वल टू a0 माइनस a1, बिकॉज a0 प्लस a1 इंटू माइनस 1, यानी a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आएगा a2n इंटू माइनस 1 टू द पावर 2n, और माइनस 1 टू द पावर इवन क्या होगा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्लस 1, और माइनस 1 टू द पावर ऑड इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस 1. तो लास्ट टर्म हमारा आएगा प्लस में प्लस a2n, एंड दिस इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ रहा है 2 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n आ गया, और हमें अल्टीमेटली चाहिए a1 से लेके a2n माइनस 1 तक का सम. तो इफ वी ऐड दीज टू इक्वेशंस, तो ऐड करते ही हमारा a1 गेट्स कैंसिल आउट, a1 a3 दीज विल गेट कैंसिल आउट, तो हम ऐड नहीं करेंगे, विल बी सबट्रैक्टिंग दीज. तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, तो माइनस करते ही a0 माइनस a0, a1 माइनस a1 था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि सबट्रैक्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली. तो a0 एंड a0 विल गेट कैंसल्ड आउट, a2 विल गेट कैंसल्ड आउट, तो ऑल इवन टर्म्स विल बी गेटिंग कैंसल्ड आउट, बट ऑड टर्म्स सारे के सारे रह जाएंगे. तो 4 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a3 टिल a2n माइनस 1. ओके,
तो 2 टाइम्स की वैल्यू आई है, तो इफेक्टिवली यहाँ से हमारा सम ऑफ a1 a3 till a2n minus 1 this will be equal to 4 to the power n minus 2 to the power n divided by 2, and this is given as equal to 496. 4 to the power n minus 2 to the power n, this will be equal to 496 into 2, so that will be equal to 992. अब n क्योंकि हमारा एक इंटीजर ही है, हालांकि मेंशन भी होना चाहिए था एडिशनली, बट ठीक है, n इज एन इंटीजर, तो क्या वैल्यू हो सकता है? 4 to the power n minus 2 to the power n is 992, so 2 to the power n will be very smaller in comparison to 4 to the power n, ठीक है, so 2 to the power 10 is equal to 1024, or basically 4 to the power 5 is equal to 1024, and 2 to the power 5 is equal to 32. So n will be equal to 5, because at n equal to 5 this is satisfying. 1024 minus 32, that is equal to 992. तो n हमारा यहाँ से इक्वल टू 5 आ गया, एंड n इक्वल टू 5 आते ही नाउ वी नो द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2 plus x square to the whole power 5, whole power 5. दिस इज अवर पॉलिनोमियल, एंड क्वेश्चन पूछता है हमसे रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x plus 2, ठीक है, तो जब हम डिवाइड करते हैं व्हेन वी आर डिवाइडिंग बाय x minus a, तो वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a, यानी कि x माइनस ए को 0 के बराबर करते हैं. इफ x माइनस ए से डिवाइड करना है तो x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x शुड बी पुट इक्वल टू a. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिवाइड बाय x प्लस 2, तो x प्लस 2 इफ दैट इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू -2, तो पुट x इक्वल टू -2 इन द ओरिजिनल इक्वेशन. तो p ऑफ -2, दिस इज इक्वल टू 2 -2 प्लस -2 होल स्क्वायर, यानी प्लस 4 टू द पावर n, so that will be basically 4 to the power n only, and hence 4 to the power 5, यानी कि 1024 will be our answer. In this question our answer will be 1024. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 distinct numbers a, b, c and d are in geometric progression. The sum of a and d is 224. If first term and common ratio of the progression are positive integers, then find the difference between arithmetic mean and geometric mean of b, c and d. तो 4 distinct terms है हमारे पास a, b, c and d, and these are in geometric progression. Given हमें क्या है? Given is sum of a and d, तो a plus d is given, that is equal to 224. Now if there are some terms given in geometric progression, अगर हमें प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है, अगर वहां पे हमें प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इज गिवन, इफ प्रोडक्ट इज गिवन, तो इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी, 3 टर्म्स है जीपी में, तो विल बी अज्यूमिंग फर्स्ट टर्म एज कैपिटल ए अपॉन आर, सेकेंड टर्म एज कैपिटल ए, एंड थर्ड टर्म एज कैपिटल ए इंटू आर. यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए बाई आर एज्यूम किया है, सेकेंड टर्म ए, थर्ड टर्म ए इंटू आर. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल दीज 3 टर्म्स, तो आर विल गेट कैंसिल आउट, तो प्रोडक्ट हमारा ए क्यूब आ जाएगा. ठीक है, तो इफ प्रोडक्ट इज गिवन, so we'll be assuming terms as a by r, a and ar. If 4 terms are given in GP, then we'll be assuming a by r cube, a by r, a into r and ar cube. Now in this case हमारा common ratio क्या है? Common ratio is r square. r square is our common ratio in this case, and first term is a by r cube. जैसे मल्टीप्लाई करोगे सारे 4 terms को, तो r will get cancelled out. ठीक है, तो अगर हमें प्रोडक्ट इज गिवन, then we are assuming terms as such in this manner. बट अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है, जैसे इन दिस केस सम इज गिवन, सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज गिवन, तो बी एज्यूमिंग कन्वेंशनली द जीपी टर्म्स, यानी कि ए फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म ए इंटू आर, थर्ड टर्म ए इंटू आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए इंटू आर क्यूब. तो बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब. नाउ ऑल दीज 4 टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और सम ऑफ ए एंड डी इज गिवन, तो यानी कि ए प्लस ए आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 224. ए कॉमन आ गया, ए इंटू 1 प्लस आर क्यूब, this is equal to 224. Now we have to find out value of a and r. Another very important information that is given, that first term and common ratio of the progression are positive integers. So these two are natural numbers. A is also positive and r is also positive. So if r is positive, so r cube will also be integer, r cube plus 1 will also be integer. So that is a good hint, because r cube पे हमारे पास बहुत limited possibilities होंगी, ए पे तो बहुत सारी हो सकती हैं कंसीडरिंग फैक्टर्स ऑफ 224, बट आर क्यूब विल बी हैविंग वेरी लिमिटेड वैल्यूज, इजंट इट सो? तो पहले फैक्टराइज कर लेते हैं. 224 इज बेसिकली 112 into 2
और 7 से भी हो रहा है, तो हाँ 32 इंटू 7, दिस इज 32 इंटू 7. A into 1 plus r cube, that is 32 into 7. Now let us check possibilities for r, and accordingly r cube plus 3 1 की क्या वैल्यूज होंगी. Since r has to be a positive integer and all these four terms are distinct as well, they are not equal. तो अगर distinct है, distinct implies that common ratio should not be equal to 1. That should not be equal to 1. So minimum value can be 2 for common ratio. Positive होगा, minimum value can be 2. So if r is equal to 2, r cube plus 1 will be 2 cube, यानी 8 plus 1 9. Definitely 9 is not a factor of 32 into 7 or 224. So not possible. This case is not possible. If r is equal to 3, r cube is 27 plus 1 28. 28 is 7 into 4. So yes, this is possible. Possible है. और values देख लेते हैं. So if r is equal to 4, r cube will be 64 plus 1 65. 13 into 5. But neither 13 nor 5 is a factor of 224. So this is again not possible. If r is equal to 5, 126, again not possible. If r is equal to 6, so this will be 217, again not possible. और इससे बड़ी वैल्यू लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता. So only possible cases when r is equal to 3. So definitely r must be equal to 3. There is no other option. This is the must case, that r must be equal to 3. And if r is equal to 3, r cube plus 1 is 28. r cube plus 1 is 28. तो 7 into 4 बच गया 8. तो a must be equal to 8. 8 into 28. a is equal to 8 and r is equal to 3. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर. और अगर a 8 आ गया, r 3 आ गया, तो हमें सारे के सारे टर्म्स नोन हो गए. a is equal to 8, फर्स्ट टर्म इज 8, सेकेंड टर्म विल बी 8 into 3 24, थर्ड टर्म 72, 24 into 3, और नेक्स्ट टर्म लास्ट टर्म 72 into 3 260. B is 24, C is 72 and D is 216. क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस. अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस. तो ABCD आर 8, 24, 72, 260. Now arithmetic mean of some terms, अगर n terms है, arithmetic mean of n terms will be equal to A1 plus A2 till AN divided by n, average basically. And geometric mean of those n terms will be nth root of product of those values. तो A1 into A2 till AN to the power 1 upon n. यहाँ पे 3 terms के लिए पूछ रहा है. तो arithmetic mean for these 3 terms will be average of these 3, 24 plus 72 plus 216 divided by 3. So this is 8 plus 24 plus 72, यानी 96 plus 8 104. 104. And geometric mean will be product of these 3, 24 into 72 into 216, which will be nothing but the middle value. ठीक है. B into C into D to the power 1 by 3, और basically AR into AR square into AR cube to the power 1 by 3, that will be A cube R to the power 6 to the power 1 by 3, यानी कि A into R square, या बेसिकली मिडिल टर्म आएगा. ठीक है. अगर 3 टर्म्स का ही हम ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं, तो दैट विल बी मिडिल टर्म ओनली, दैट विल बी इक्वल टू 72. AM is 104 and GM is 72. Difference of these two is coming out to be 32. ओके. डिफरेंस हमारा 32 आएगा. क्या ये क्लियर है? ओके. ठीक है. अब यहाँ पे एक और बात समझते हैं. क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा, बट एक और चीज़ को ध्यान से देखते हैं कि हमें गिवन था a इंटू 1 प्लस आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 224, दैट इज 32 इंटू 7. तो जस्ट इन केस 1 प्लस आर क्यूब, अभी इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं पड़ी है, बट कहीं पे जरूरत पड़ता है कभी कभी, वैसे भी हमें एनालाइज करना पड़ता है. तो 1 प्लस आर क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. तो 1 प्लस आर क्यूब इज बेसिकली 1 plus r into 1 plus r square minus r, and this product is given as 224, which is 32 into 7. Okay, now focus on this term, 1 plus r square minus r. 1 plus r square minus r, this is basically 1 plus r को कॉमन ले लिया, तो r into r minus 1. r into r minus 1. r into r minus 1 is product of two consecutive numbers. Product of two consecutive numbers. इसी फॉर्म में लिखा होता, बट दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स. तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स विल ऑलवेज बी अ इवन नंबर, बिकॉज इफ फर्स्ट नंबर इज इवन सेकंड विल बी ऑड, इफ फर्स्ट नंबर इज ऑड सेकंड विल बी इवन, तो इट विल ऑलवेज बी इवन, ऑलवेज इवन. और फिर इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो इफ यू आर एडिंग 1 इन अ इवन नंबर, तो दैट नंबर विल ऑलवेज बी ऑड और
श्योर। और ऑड है तो फिर 2 का मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे हमें क्लियरली गिवन है क्या 32 इंटू 7। तो इन 32 इंटू 7 द ओनली नंबर दैट इज ऑड इज 7। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटीज, या तो 7 होगा या फिर 1 होगा, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इधर 7 और 1, भाई 1 भी होना पॉसिबल था। तो 7 या 1, तो 1 प्लस आर इंटू आर माइनस 1 कैन बी इक्वल टू 7 और 1। अब अगर ये 7 या 1 होगा तो यहाँ से दो ही केसेस बनते हैं, आर इंटू आर माइनस 1 कैन बी इक्वल टू 6 और आर इंटू आर माइनस 1 कैन बी इक्वल टू 0। इफ दिस दैट इज इक्वल टू 0, तो या तो आर हमारा 0 होगा या फिर आर माइनस 1 0 होगा। अगर आर 0 हो गया, इधर आर इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू 1। आर ना तो 0 हो सकता है ना 1 हो सकता है, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबल केस, आर इंटू आर माइनस 1 इज इक्वल टू 6, एंड सिंस आर इज पॉजिटिव डेफिनेटली दिस इज 3 इंटू 2। अदरवाइज -2 इंटू -3 भी हो सकता था। ठीक है, दो केसेस बनते हैं -2 इंटू -3, बट वो तो पॉसिबल नहीं क्योंकि आर हमारा पॉजिटिव ही होना है, तो डेफिनेटली आर मस्ट बी इक्वल टू 3। क्या ये समझ पा रहे हो? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the number of integral solutions for x in the interval -10 to 10 that satisfy the given inequality mod of x square minus 3 times mod of x plus 2 that is less than mod of x square plus mod of x minus 6। लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पे शायद mod of b mod of a प्लस मतलब mod of something plus mod of something that was less than something का mod that was given। ठीक है, in this case we have a one modulus value that is less than the second modulus value। So again we'll be thinking in that direction only। If we assume that first term inside modulus, that is first expression is a, second expression is b, so we can say that this question is basically mod of a less than mod of b, square on both sides। So this becomes a square less than b square। So a square minus b square should be less than 0, यानी कि a plus b into a minus b, this should be less than 0। If a plus b into a minus b is less than 0, then definitely mod of a will be less than mod of b। So a plus b क्या आएगा यहाँ पे, a plus b will be equal to, a प्लस बी तो कर लेंगे हम, पर पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स गिवन है। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से वाई। जैसे ही मॉड ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, सो फर्स्ट टर्म विल बी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है जो कि मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर ओनली, एंड दैट विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल बी इक्वल। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर ले आएंगे, वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस 2, एंड दिस इज लेस देन मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6। ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई प्लस वाई, तो माइनस 2 वाई माइनस 4, एंड ए माइनस बी दिस विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3 वाई माइनस वाई यानी माइनस 4 वाई और प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8। So this is a plus b and this is a minus b. Product of these two should be less than 0. Make it 2 times y square minus 2y minus 4 multiplied by minus 4y plus 8. This is less than 0. So 2 common आ गया, y square minus y minus 2, एंड यहाँ से माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 4 को बाहर लिख लो, इंटू वाई माइनस 2, दिस इज लेस देन 0। तो माइनस 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस 8 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2, एंड दिस इज लेस देन 0। तो माइनस 8 इज अ कॉन्स्टेंट बट दैट इज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर है और माइनस 8 इंटू समथिंग दैट इज लेस देन 0, तो सम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाई सम अदर नंबर्स दैट इज नेगेटिव। तो कह सकते हैं कि जो बाकी बचे हुए नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 दैट शुड बी पॉजिटिव। तभी तो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 दिस शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? नाउ फोकस ऑन वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2। तो कैन वी फैक्टराइज इट? प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 2 एंड सम इज 1, so this can be 2 and minus 1, 2 and minus 1, so we can say this is y plus 1 into y minus 2, और y minus 2 पहले से भी है, तो y plus 1 into y minus 2 whole squared that is greater than 0। This becomes y plus 1
into y minus 2 whole squared and that is greater than 0. Okay. Now we already know कि mod of x को हमने y assume किया था. Since y was equal to mod of x, तो y should always be greater than equal to 0. y तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा. And if y is positive, तो y plus 1 will always be positive, greater than equal to 1. क्योंकि y अपने आप में greater than equal to 0 है, तो y plus 1 will be greater than equal to 1. तो हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि y minus 2 whole square पॉजिटिव हो. और दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, दिस विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा. ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, दिस विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सिर्फ एक केस बनेगा कब, व्हेन y इज इक्वल टू 2. इफ y इज इक्वल टू 2 देन दिस पार्ट विल बी 0. y प्लस 1 तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 0 कभी भी नहीं हो रहा. ठीक है, दैट इज नेवर 0. बट डेफिनेटली एट y इक्वल टू 2 दिस होल टर्म बिकम्स इक्वल टू 0. तो एज लॉन्ग एज y इज नॉट इक्वल टू 2 दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो जस्ट एक कंडीशन है हमारा कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 2. y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 2. तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, y शुड बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2. तो फ्रॉम 0 टू यूनियन फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, दिस इज फॉर y. बट क्वेश्चन y के लिए पूछ रहा है, क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहा है, x के लिए पूछ रहा है. तो mod ऑफ x, y इज नथिंग बट mod ऑफ x ओनली. तो mod ऑफ x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू एंड 2 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2. So we can say that x will be equal to any value. Basically x can be any number, all real numbers minus those real numbers जहाँ पे कि mod of x हमारा 2 आ रहा है. तो mod of x should not be equal to 2, यानी कि x should not be equal to minus 2 and 2. This will be our solution. Except minus 2 and 2, all other values are possible. All other values are satisfying this given condition. और क्वेश्चन से पूछा इन द इंटरवल माइनस 10 to 10 कितने इंटीजर्स होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे. सो ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट माइनस 2 and 2. टोटल इंटीजर्स कितने हैं फ्रॉम माइनस 10 to 10? 10 नेगेटिव इंटीजर्स, 10 पॉजिटिव एंड 1 0. तो 10 प्लस 10 प्लस 1 टोटल 21 इंटीजर्स हैं, जिनमें से कि 2 नहीं चाहिए हमको, माइनस 2 and 2 नहीं चाहिए, माइनस 2. तो 19 इंटीजर्स विल बी आवर सॉल्यूशंस. 19 विल बी आवर सॉल्यूशन. क्या ही क्लियर है? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा. एंड इफ देयर इज स्टिल एनी डाउट देन मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल एंड गिव फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.